Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on myths and legends part 3. I have already started a new series on important myths and legends. In this series I am explaining all the important mythological characters and their life stories as well as some legendary heroes. तो ये उस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट टू वीडियोस। So this is the third part of our journey towards myths and legends. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also topped in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. Those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. So let's start. The first person which we are talking about, that is Saint Margaret. Saint Margaret कौन थे? This is the image of Saint Margaret. We are starting our class with her. So Saint Margaret, basically she was described in the Golden Legend, and वो कौन थे? She was a female saint who lived in the disguise of a man. So very interesting. She was a female saint, but यहाँ पर देखो जो स्ट्रक्चर है उनका, जो उनका अपीयरेंस है, वो एक मेल की तरह है. So she looks like a male. She took the disguise of a man, and she was actually married to a noble youth but fled away on the wedding night. That was the story of Saint Margaret. And then, when she fled away on her wedding night, she then took the disguise of a man जिसका नाम था Brother Pelagius. Brother Pelagius का disguise वो लेता है and came to a monastery. Now she becomes the saint. And she was suspected for impregnation of a nun because she came there under the disguise, in the disguise of a man. So as a and सभी लोग उनको मेल ही समझ रहे थे. So she was suspected for impregnation of a nun and she was punished, wrongly punished, and before death she confessed everything in a letter. तो अपने डेथ से पहले वो सारी चीजें एक लेटर में लिख रहा है कि why she had taken the disguise of a man and actually she was an woman. ये सारे के सारी चीजें वो एक लेटर में लिख रहा है. And finally she was punished and she was executed. So that is the story of Saint Margaret. Okay, तो ये सारे के सारे बिब्लिकल स्टोरीज हैं. एंड इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? गोल्डन लेजेंड में ये स्टोरी बताया गया है अबाउट सेंट मार्गरेट. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं सेंट मेरी मैगडालेनी. वेरी पॉपुलर नेम इन लिटरेचर. मेरी मैगडालेनी का नाम आपने शायद सुना होगा. अब ये कौन थे? यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो मेरी मैगडालेनी. शी इज ऑल्सो अ सेंट. ठीक है, एंड शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम बिकॉज शी इज द फर्स्ट पर्सन टू सी जीसस आफ्टर हिज रेजरेक्शन. तो एक तो है क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट, उसके बाद रेजरेक्शन ऑफ जीसस. वो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है इन बाइबल. So she was the first lady, first person to see Jesus after his resurrection. Now Jesus saved her from 7 deadly sins. So यहाँ पर वही इमेज आप देख रहे हो कि Jesus is blessing this lady Saint Mary Magdalene, and he saved her from 7 deadly sins. And Saint Mary Magdalene is always portrayed at the foot of the cross while other disciples fled. So she was a very faithful disciple of of Jesus Christ. तो क्या होता है कि जब सारे डिसाइपल्स जीसस को छोड़कर चले जाते हैं तब यही एक पर्सन है जो उनके साथ थे at the time of his crucifixion. So she stayed at the foot of the cross. इसी टाइप से मतलब हर पिक्चर में ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है मेरी मैगडालेनी को. When Jesus was crucified, she was standing or sitting at the bottom of the cross. So she was such a faithful disciple of Jesus.
नाउ सेंट मेरी मैग्डालेनी के ऊपर वेरिएंट मिथ्स है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स के बारे में बताया गया है। कुछ मिथ्स में उनको ग्लोरीफाई किया गया है एज अ वर्चुअस लेडी, कुछ मिथ में कहा गया है कि शी वाज अ वेस्टेड वुमन, ठीक है। एंड शी ऑल्सो शी वाज ऑल्सो पोर्ट्रेड इन सम मिथ्स एज प्रेइंग इन द डेजर्ट विथ स्कल्स और बोन्स, सो बेसिकली नेक्रोमेंसी के साथ उनको एसोसिएट किया गया है। कुछ मिथ्स में कहा गया है कि शी वाज अ परफेक्टली वर्चुअस लेडी हु गॉट द डायरेक्ट ब्लेसिंग फ्रॉम जीसस। तो वैरायटीज ऑफ मिथ्स उसके ऊपर है एंड उसको डिस्क्राइब किया गया है ब्यूटीफुल वुमन विथ लॉन्ग हेयर बट शी हैड अ सिंफुल लाइफ। यहाँ पर भी देखो जो इमेज है, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन विथ लॉन्ग हेयर बट उनके लाइफ बहुत सिंफुल है, ऐसा बताया गया। तो वेरिएंट मिथ्स है, मतलब कोई कहता है कि बहुत वर्चुअस है, कोई कहता है सिंफुल है, कोई कहता है नेक्रोमांसी के साथ वो एसोसिएटेड है विथ स्कल्स एंड बोन्स एंड प्रेइंग इन द डेजर्ट नॉट इनसाइड द चर्च। ओके, तो वेराइटीज ऑफ मिथ्स है बट द कैरेक्टर इज वेरी फेमस, सेंट मेरी मैग्डालेन। ओके, चलो नेक्स्ट हम आते हैं मीडिया, वेरी वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, राइट। आप सबने नाम सुना होगा मीडिया का। कौन थे मीडिया? दिस इज द इमेज ऑफ मीडिया, यू कैन सी शी इज ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल वुमन। तो मीडिया कौन थे? मीडिया द नेम एक्चुअली मीन्स कनिंग, मीडिया नेम का मीनिंग है कनिंग एंड ही शी वाज द वाइफ ऑफ जेसॉन, जेसॉन का वो वाइफ थे। एफ्रोडाइट मेक्स द मैच टू असिस्ट जेसॉन इन द क्वेस्ट ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो क्या स्टोरी है बेसिकली, कैसे वो बना था वाइफ ऑफ जेसॉन? तो एक्चुअली गॉडेस एफ्रोडाइट chooses Medea as the perfect match for Jason because Medea has that kind of capability, Medea has that kind of magic through which she can help Jason in the quest of golden fleece. वो जैसन को हेल्प कर पाए एंड मीडिया वॉज अ वेरी पॉपुलर नेम एज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, मैजिक एंड प्रिस्टेस ऑफ हेकेट, हेल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वेरी पॉपुलर गॉडेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड यू कैन से। तो विचक्राफ्ट मैजिक के साथ एसोसिएटेड है मीडिया का नाम। नाउ जैसन के साथ तो मैरिज होता है मीडिया का, बट लेटर व्हाट हैपेंस, जैसन डिसीव्स मीडिया एंड ट्राइज टू मैरी ग्लॉस, another girl tried to marry Gloss, but मीडिया ने क्या किया, मीडिया killed Gloss with poisoned rope। तो मीडिया न्यू मैजिक, राइट, ब्लैक मैजिक उनको आता था, विच क्राफ्ट आता था। तो मीडिया ने क्या किया, ग्लॉस को मार दिया विथ पॉइजनड रोब, एक पॉइजनड ड्रेस पहनाकर ग्लॉस को उन्होंने मार दिया। And also she killed her two sons to take revenge on Jason. So very, very cruel mother in that sense, Medea. Okay, so Medea killed her two sons only to take revenge on Jason. So that kind of a lady was Medea. And यहाँ पर image में आप देख रहे हो, she was a very beautiful lady and she was associated with cunningness, goddess of witchcraft. Okay, चलो नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम आते हैं, दैट इज मेनेलॉस, वेरी पॉपुलर नेम इन वार ऑफ ट्रॉय। दिस इज द इमेज ऑफ मेनेलॉस। कौन थे मेनेलॉस? हम देखते हैं। मेनेलॉस द नेम एक्चुअली मीन्स माइट ऑफ द पीपल, might of the people, might here means powerful, so power of the people, actually the meaning of the name Menelaus। तो मेनेलॉस के बारे में हम इन डिटेल बता स्टडी करेंगे व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द समरीज ऑफ इलियाड ओडिसी। ये भी क्लासिक वर्क है यूरोपियन लिटरेचर का। तो इसके समरीज पढ़ते टाइम हम डिटेल में बात करेंगे मेनेलॉस के बारे में। बट अभी आप जान लो मेनेलॉस कौन थे। ही वाज द किंग ऑफ स्पार्टा एंड ब्रदर ऑफ एगामेम्नन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, and he returned to Sparta with Helen after Trojan War. So Menelaus is a very heroic character in War of Troy. Okay, and the name means might of the people. तो उनके नाम में ही एक heroism है. This is Menelaus. Okay, next हम आते हैं Mephistopheles. Very very popular character in English literature and Mephistopheles बताते ही एक ही नाम दिमाग में आते हैं, that is Dr. Faustus. आप इमेज देख रहे हो, वेरी हॉरिड लुकिंग इमेज, वेरी कनिंग मैन, नॉट अ मैन एक्चुअली, मेफोस्टोफिलिस इज अ डेविल, ठीक है। तो पॉपुलरली फिगर्ड इन फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस। So Mephistopheles. Mephistopheles, the name actually means he who loves not the light. मतलब he who loves darkness. So Mephistopheles, the name itself means a man who doesn't love light, which means a man who is a resident of darkness, evil,
Mephistopheles is a monster, a great devil who tempts Faustus. एंड मेफोस्टोफिलिस के अंदर क्या पावर था जो डॉक्टर फॉस्टस में दिखाया गया है? ही कैन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू वेरियस शेप्स. Faustus is ordering Mephistopheles that you are looking so horrible. Why have you come in this horrid face? Go and return as old Franciscan friar. That holy shape shoots the devil best. Faustus is ordering. एंड मेफोस्टोफिलिस उसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है. तो वो जितने भी शेप्स लेने की बात करे वो सारे के सारे शेप्स ले सकता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. एंड ही वाज अ सर्वेंट ऑफ लूसीफर एंड हेल. ही कैरीज हेल विद इन हिम ऑलवेज. ये भी मेफोस्टोफिलिस ने मेंशन किया था कि माई सेल्फ एम हेल और दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट. Okay, so whenever Mephistopheles is going, wherever Mephistopheles is going, he is carrying hell within him. So he is an eternally damned devil. And he is described as a horrid-looking monster with fiery flames issued from his body. Okay, so that kind of that kind of an appearance of Mephistopheles, and he was very popular in Faust legends and operas. Faust legend matlab not only Dr. Faustus, but also जो जोहान वुल्फगैंग वॉन गॉथ का वर्क था फॉस्ट, उसमें भी मेफोस्टोफिलिस का कैरेक्टर है. एंड ऑल्सो वेरियस ओपेरास विच इज बेस्ड ऑन डॉक्टर फॉस्टस एंड गॉथ्स फॉस्ट. ये दोनों वर्क के ऊपर जो भी ओपेरास बेस्ड है उनमें भी मेफोस्टोफिलिस बहुत ही पावरफुल एक कैरेक्टर है. बट डिफरेंस क्या है कि गॉथ का जो फॉस्ट है उसमें फॉस्टस फाइनली सेव्ड, बट मार्लोस फॉस्टस इज इटर्नली डैम्ड एंड ही इज किल्ड बाय मेफोस्टोफिलिस. ओके, तो बट मेफोस्टोफिलिस का कैरेक्टर दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो इन गॉड्स फर्स्ट एंड ऑल्सो इन मार्लोस फर्स्ट. तो मेफोस्टोफिलिस का नाम फॉस्टियन लेजेंड से ही पॉपुलर हुआ था एज अ मॉन्स्टर एंड एज अ डेविल हु लिव्स इन हेल. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं किंग मिडस. अ वेरी पॉपुलर नेम किंग मिडस. आई होप आप सब ने मिडस के ऊपर जो हम स्टोरीज बचपन में पढ़े थे वो आप सब ने पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर इमेज से आप पहचान सकते हो मैं कौन सी स्टोरी की बात कर रही हूँ कि किंग मिडस वट एवर ही टचेस इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू गोल्ड. तो वही स्टोरी यहाँ पर एक कार्टून इमेज में दिखाया गया है कि जितने भी खाना देखो वो खाने की कोशिश कर रहा है, सारे के सारे चीजें गोल्ड बन रहे. तो दैट वाज द स्टोरी एंड इसका मोरल ये था कि ग्रीड इज नॉट गुड. एंड मतलब आपके ग्रीड आपको डिस्ट्रक्शन के पथ पर ले जा सकते हैं. ग्रीड लीड्स अ मैन टू एस्ट्रिक. सो दैट काइंड ऑफ अ मॉरल वाज देयर. तो वही किंग मिडस एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, एंड मिडस वर्ड का मीनिंग है सीड. ओके, मिडस वाज द किंग ऑफ फ्रीगिया और फ्रीजिया, जो भी आप प्रोनाउंस करो. ही वाज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर इन मोरालिस्टिक स्टोरीज. And we have all read about the story of King Midas as a gift of helping Silenus. Silenus कौन थे? Silenus एक बहुत ही पावरफुल डिवोटी था डायोनिशस का, बैकस. तो डायनिशस के डिवोटी था सिलेनस, एंड सिलेनस को हेल्प किया था किंग मिडस ने. तो एज ए बून डायोनिशस ने ये उनको बून दिया था कि बाय ग्रांटिंग हिज विश. तो क्या बून दिया था डायोनिशस ने कि मिडस प्रेड टू टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड विथ हिज टच. मिडस को उन्होंने ये बून दिया था कि जो भी चीजें वो टच करेंगे वो इमीडिएटली गोल्ड हो जाए. But later what happens that this boon appears as a curse to him. He could not even eat anything. And finally, his daughter is also transformed into a gold statue. Then Midas was very very upset, and moralistic story में हम ये देखते हैं कि Midas फिर से गॉड के पास जाकर प्रे कर रहा है कि ऐसा मुझे नहीं चाहिए. Then God gave him some lesson, and finally सब कुछ ठीक हो रहा है. बट यहाँ पर जो स्टोरी बताया गया है ओरिजिनल मिथ में वो ये है कि मिडस वाज फाइनली पनिश्ड एक्चुअली फॉर दिस काइंड ऑफ ओवर ग्रीड. एंड पनिशमेंट क्या था? बाय हैविंग हिज ईयर्स टर्न्ड इनटू एशेस. तो ईयर को मतलब सॉरी एसेस मीन एसेस. ओके, तो एस का ईयर की तरह बना दिया था उनके ईयर को, एंड दैट वाज द पनिशमेंट गिवन बाय गॉड टू किंग मिडस. सो दैट वाज द पनिशमेंट. एंड मिडस का कैरेक्टर कहाँ पर है? मिडस इज अ वर्क रिटन बाय जॉन लिली. मर्चेंट ऑफ वेनिस में है बाय शेक्सपियर. पोप्स डांशियार्ड में है, एंड ओविड्स मेटामॉर्फोसिस में भी है.
ठीक है। ओविड के मेटामॉर्फोसिस मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मिथ में, लीजेंड्स में हम देखते हैं। ऑलमोस्ट 250 कलेक्शन ऑफ मिथ्स है, तो उसमें मिडस का स्टोरी भी मेंशन है ओविड के मेटामॉर्फोसिस। ओके, चलो लास्ट कैरेक्टर ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज मोजेस, वेरी वेरी पॉपुलर मोजेस। यहाँ पर आप इमेज देखकर ही पहचान रहे हो, मोजेस इज द सेवियर ऑफ इजराइलिटीज जो स्टोरी है, एंड रेड सी के बीच से वो इजराइलिटीज को लेकर जा रहे हैं, तो वही इमेज है मोजेस का, वेरी पॉपुलर इमेज। एंड मोजेस का मतलब है सन। Okay, he was the savior of Israelites. He was born to Hebrew parents in Egypt. And what happens that the Pharaoh of Egypt, he ordered to kill all male children. ये एक ऑर्डर दिया था फराव ने, एंड व्हेन मोसेस वाज बोर्न, आफ्टर दैट द फराव इशूड दैट ऑर्डर। नाउ मोसेस मदर पुट हिम इन अ बास्केट एंड फ्लोड इट इनटू अ स्ट्रीम। आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो हमारी महाभारत का जो स्टोरी था, द बर्थ ऑफ कॉर्न। So Karno was actually an illegitimate son of Kunti, because Kunti got him as a gift before marriage. Now what happens that to avoid any kind of social controversy, Kunti put Karno in a basket and flowed it into a river, and finally Udhirath took him and brought him as his own son. So that is why Karno is known as Radhe. So the same story यहाँ पर भी है, देखो थोड़ा सा ऑल्टर है यहाँ पर। तो वहां पर कुंती ने अपने कंपल्शन के लिए रिजेक्ट किया था कर्ण को, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ किलिंग, मास किलिंग जो फराव ने ऑर्डर दिया था, उससे बचने के लिए मोजेस की मम्मी क्या कर रहे हैं, उसको एक बास्केट में मतलब हाइड करके उनको रिवर में बहा देता है ताकि वो सेव हो जाए। एंड फाइनली क्या होता है, रेस्ड बाय द डॉटर्स ऑफ द फराव। बहुत ही कोइंसिडेंटली फराव का जो डॉटर्स है उसी को मिलता है मोसेस, एंड फाइनली दे रेज्ड हिम एज देयर सन, एंड ही रिसीव्ड द कमांड, मोसेस रिसीव्ड द कमांड ऑफ याहवे। याहवे इज हिब्रू गॉड है, ठीक है। याहवे का कमांड उसे मिलता है टू लीड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आउट ऑफ इजिप्ट। ये मास किलिंग से बचने के लिए सारे के सारे मैन को, इजराइल पीपल को इस इजिप्ट से बाहर ले जाना है, स्पेशली द चिल्ड्रन। नाउ फेराओस आर्मीज नेचुरली चेस्ड देम। तो मोसेस ये जब उनको ये ऑर्डर मिला फ्रॉम द गॉड याहवे, मोसेस इज ट्राइंग टू फॉलो दैट ऑर्डर। एंड जब फेराओ की आर्मी को ये पता चल रहा है कि मोसेस एक ऐसा पर्सन है जो इजराइलिट्स को सेव करना चाहते हैं, तो फेराओ के आर्मी उनके पीछे भाग रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरी कि मोसेस ने क्या किया, मोसेस मिराक्युलसली डिवाइड्स द रेड सी एंड द इजराइलिटीज क्रॉसेस सेफली। मोसेस ने अपना मैजिक को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, रेड सी जो एक सी है उसके बीच में उन्होंने एक रास्ता बना दिया, एंड उस रास्ते के ऊपर से इजराइलिटीज आराम से गुजर गए। बट व्हेन द आर्मीज केम, दे ड्राउन। जब आर्मीज वहां पर आ रहे हैं उनको चेस करने के लिए, तब जो डिविजन मोसेस ने किया था वो डिविजन दूर हो जाते हैं, सी फिर से अपने पहले पोजीशन में आ जाते हैं, एंड द आर्मी इज ड्राउन हियर। And later he receives 10 commandments from God after reaching to a mountain, and he dies at Mount Pisgah, ऐसा स्टोरी है। तो ये इमेज में भी आप देखो वही सीन है कि ये जो रेड सी है इसके बीच से एक रास्ता क्रिएट कर दिया है मोसेस ने। मोसेस इज इंस्ट्रक्टिंग द इजराइलिटीज टू गो टू फ्ली एक्चुअली। तो इजराइलिटीज देखो इस रास्ते से जा रहे हैं, एंड मोसेस यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सो दैट इज अ वेरी पॉपुलर इमेज ऑफ मोसेस, सेवियर ऑफ इजराइलिटीज। एंड मोसेस का नाम ही एसोसिएट किया जाता है सेवियर के साथ। ओके, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ मोसेस। Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for watching. This is the link of my Telegram channel. जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लो to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Please comment on the videos which I am uploading. It will help me to know your feedback. Okay, so thank you all. Have a nice day. Bye bye. See you all in the next class.